Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Kids, my name is Hira Lotia from JM English Medium School and I am your science teacher. Kids, we completed our chapter number 1, right? So, in today's section, I am going to introduce you chapter number 2, that is the food factory of plants, right? In this section, I am going to introduce you all vocabulary words with meanings and with pictures. So kids, after listening the name of the chapter, you are like, what is the food factory of the plant? What is the meaning of a food factory? Food factory मतलब जहाँ पे फूड के पैकेट्स बनते हैं वो भी फूड फैक्ट्री होती है, बट फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स. So it is some kind of a mysterious thing for you, right? So with the help of PPT, I am going to solve your mystery, right? So let's first let me tell you something about parts of a plant, then after parts of a leaf and everything. ये सारी चीजें इसी चैप्टर में आएगी, right? So first of all, I need to explain you all the vocabulary words through PPT. So are you kids ready? So let's begin PPT. Kids, I'm going to explain you few vocabulary words through PPT, okay? So the chapter name is the food factory of a plant. फैक्ट्री का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या है? फूड फैक्ट्री मीन्स अ प्लेस वेयर फूड प्रोडक्शन हैज़ बीन देयर, राइट? कि फूड की प्रोडक्शन होती है. बट यहाँ पे तो द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बोला है कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्री. तो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कौन है? चलो ये चैप्टर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दीज ओनली, राइट? बट बिफोर स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज चैप्टर, लेट मी हेल्प यू टू एक्सप्लेन फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट एंड वोकेबुलरी वर्ड्स through PPT with the help of meanings and pictures, okay? The leaf is called the food factory of the plant because it makes food by the process of photosynthesis with the help of raw materials like water and carbon dioxide using sunlight and chlorophyll. Kids, I have asked you one question. Which part of a plant is called food factory, right? So the leaf is called the food factory of the plant. Why? Because it makes food by the process of photosynthesis. वो photosynthesis की process से food prepare करता है, right? That's why it is called as a food factory of a plant. When it started to make food, which type of things they need? They need air, water and sunlight, right? And they also need carbon dioxide. These things it really needs to prepare food, but one more thing it is needed, that is chlorophyll. Chlorophyll की भी ज़रूरत होती है plant को, right? So understand, kids? Now I am going to help you to understand vocabulary words. चलो, number 1, आपके दिमाग में आया होगा, दीदी what is the meaning of chlorophyll? The green substance present in leaves, it allows plants to absorb and use light. मोस्टली प्लांट्स के लीव्स के कलर कौन से होते हैं? they are mostly in green colors, right? The green substance present in leaves, that is called chlorophyll. What is the work of a chlorophyll? It allows plants to absorb and use light. वो plants को लाइट को यूज़ करने में भी हेल्प करता है और वो एब्जॉर्ब करता है कोई भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर होता है वो, right? So this is the basic work of chlorophyll. It is the main portion of a plant, right? इसके बिना कोई भी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा नहीं. Clear? Now next, number 2, glucose, a kind of simple sugar. Glucose is a
एक ऐसा पोर्शन है कि वो एक सिंपल शुगर होता है जिसके थ्रू कोई भी प्लांट होता है वो प्लांट इजीली ग्रो हो पाता है, अदरवाइज ग्लूकोज के बिना वो इजीली ग्रो हो पाएगा नहीं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नंबर 3, insectivorous plants. Kids, have you heard about insectivorous plant? This word itself tells you something, that is insectivorous plant. इस word में insect word आ रहा है. It means carnivorous plants that trap and kill insects for food. अपने फूड के लिए वो दूसरे इंसेक्ट्स को किल करते हैं, मतलब मार देते हैं। बट किस तरह से प्लांट किस तरह से दूसरे इंसेक्ट्स को किल करेंगे? कोई भी प्लांट होता है उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स बैठेंगे, दैट इज़ क्लियर, राइट? तो वो कोई भी इंसेक्ट अगर उसी प्लांट के ऊपर बैठता है तो उसे क्या होगा? वो एकदम से अपने लीव्स को ओपन करेगा और एक सेकेंड में उसको अंदर ले लेगा और उसको खा जाएगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कार्निवोरस प्लांट। इसको हम कार्निवोरस प्लांट भी कह सकते हैं कि अपने फूड के लिए वो दूसरे इंसेक्ट्स को मार के अपना फूड बनाता है, राइट? It is killing insects for food. Clear? Here I have shown an image of different types of insectivorous plants. इनके आप फेस देखो, मतलब वो उसके ऐसे दिखने में ही ऐसा होता है कि वो खोल के इंसेक्ट को अंदर लेके और अपने आप को बंद कर देता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नंबर 4, लीफ एपेक्स, द टिप ऑफ अ लीफ। यहाँ पे हियर आई हैव शोन एन इमेज, जहाँ पे लीफ की जो टिप होती है ना, टिप, उसको हम क्या बोलेंगे? लीफ एपेक्स। व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ लीफ एपेक्स। कोई भी प्लांट की जो टोंच होती है, लास्ट वाला पॉइंट होता है लीफ का, इट इज गोइंग टू कॉल इट एज अ टिप। हियर आई हैव शोन एन इमेज जहाँ पे टिप दिखाई दे रही है और साइड में 2 एरोज और है। एक जो है पहला वाला, वहाँ पे वो आपको वेन्स शो कर रहा है और लास्ट वाला है वो आपको लीफ ब्लेड शो कर रहा है, राइट? सो यू आर नॉट सपोज टू कंफ्यूज बिटवीन वेन्स, ब्लेड एंड टिप ऑफ द लीफ। क्लियर? सो टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, number 6, that is midrib. The thin tube running through the middle of a leaf. एक ट्यूब होती है लीफ के बीच में, दैट इज कॉल्ड अ मिडरिब, जिसके आजू बाजू में सारी की सारी जो वेन्स होती है मिडरिब की, वो साथ में कनेक्टेड होती है, राइट? देयर इज अ थिन ट्यूब दैट रन्स थ्रू द मिडल ऑफ अ लीफ, दिस इज कॉल्ड द मिडरिब, और एल्स वी कैन से दिस एज अ मेन वेन। उसको मेन वेन भी बोल सकते हैं। आजू बाजू में आपको बहुत सारी अलग अलग ट्यूब्स भी दिखाई दे रही होगी, राइट? सम अदर स्मॉल ट्यूब्स दैट आर अटैच्ड टू द मिडरिब आर कॉल्ड साइड वेन्स। जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? साइड वेन्स भी बोल सकते हैं, राइट? सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड बिटवीन साइड वेन्स एंड मिडरिब। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए साइड वेन्स का और मिडरिब का। Clear? Now next, number 7, photosynthesis. The process by which leaves prepare food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis is a kind of a process through which plants are preparing their own food. Kids, you know photo means light and synthesis means preparing or putting together. It means it is connected like photosynthesis. So the process takes place in the presence of sunlight. It is called photosynthesis. एक process होती है sunlight की presence में, process continue होती है, उस process को हम क्या बोलेंगे? Photosynthesis. Clear, kids? Now
नेक्स्ट नंबर 8 side veins. Smaller tubes that are attached to the midrib of a leaf, they are called side veins. As I explained you in main vein कि बीच वाली जो मेन ट्यूब होती है उसको हम क्या बोलेंगे, मिडरिब. उसके साथ साइड में जो वेन्स अटैच होती है उसको हम क्या बोलेंगे, साइड वेन्स, जो बहुत ही स्मॉल होती है. हियर आई हैव हाईलाइटेड द इमेज ऑफ अ लीफ, स्काईलाइन की आपको हाईलाइट की करके दिखाया है. दैट आर कॉल्ड साइड वेन्स. हम उसको क्या बोलेंगे, साइड वेन्स. और बीच वाली है उसको मेन वेन. और जो लास्ट में है उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड. एज आई टोल्ड यू कि लास्ट मतलब लीफ जो होता है उसका जो होता है पतला पोर्शन, थिन वाला पोर्शन, हम उसको क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मेन वेन एंड द साइड वेन्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 9 स्टोमेटा. Tiny pores on the lower surface of a leaf where exchange of gases takes place. एक ऐसे टाइनी पोर्स होते हैं लीफ की बैक साइड. कहाँ पे होते हैं किड्स, लीफ की बैक साइड में होते हैं, राइट. तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे. स्टोमेटा का क्या काम होता है, तो कि वो होता है, वो गैसेस की एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. क्या करता है किड्स, लीफ में जो होता है वो एक गैसेस को एक्सचेंज करता है. जैसे वी ह्यूमन बींग्स आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट विद द हेल्प ऑफ आवर नोज एंड लंग्स, राइट. सेम एज like that they also need some breathing process, so they have a stomata to changes the gases, right. They are inhaling carbon dioxide and exhaling oxygen, right. तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है. क्लियर? Now next number 10, that is pollination. Pollination is a method where pollen grains are picked from an anther, which is the male part of a flower, and transferred to the flower's female part called the stigma. Pollination एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके थ्रू प्लांट्स ट्रांसफ़र होते हैं और प्लांट्स में से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसी तरह से न्यू फ्लावर्स ग्रो होते हैं, राइट. तो एक होती है कि वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, वो फीमेल पार्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन. इसी चैप्टर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मोर थिंग्स अबाउट पॉलिनेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 11 स्टार्च. The extra food is changed into a substance called starch. एक एक्स्ट्रा फूड होता है जो स्टोर होता है, उस एक्स्ट्रा फूड को क्या बोलेंगे, स्टार्च. दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फूड वी आर यूजिंग एज आवर फूड. वो जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो हमारे फूड के लिए हम यूज़ करते हैं. ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो प्लांट्स प्रिपेयर करके रखते हैं अपने लिए, बट दे आर नॉट यूजिंग अगेन. वो कभी कभी अपना एक्स्ट्रा फूड वो नहीं यूज़ करते. तो वी ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग एज अ फूड. वी ह्यूमन बींग्स एंड इवन एनिमल्स आर ऑल्सो यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज अ फूड. हियर आई हैव शोन एन इमेज ऑफ अ कैबेज. वो एक ऐसा है प्लांट जो पूरा का पूरा एक एक्स्ट्रा फूड से ही प्रिपेयर हुआ है, राइट. आई थिंक यू पीपल लाइक टू ईट कैबेज. बहुत ही ग्रीन होता है, आपको पसंद आता होगा. उसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं एंड इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. वो आप आई थिंक डू यू लाइक मंचूरियन किड्स, उसमें कैबेज का भी यूज़ होता है, राइट. सो इट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो एक्स्ट्रा फूड होता है जो कोई भी प्लांट में स्टोर होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्च. क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 12 autotrophs. Living things that can produce their own food are known as autotrophs. ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे,
ऑटोट्रॉफ्स. हियर आई हैव शोन एन इमेज ऑफ ऑटोट्रॉफ्स. मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? Autotrophs. I can ask you these type of questions in MCQ, blanks, true or false, etc. So these are the things you need to keep it in your mind. ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा के रखनी है. That living things that can produce their own food are known as autotrophs. Clear? Now next, number 13, heterotrophs. Living things that depend on others for food are called heterotrophs. ना वो था autotrophs, ये है heterotrophs. Feel the difference between autotrophs and heterotrophs. Don't get confused between these two names, okay? Heterotrophs means the living things that depend on others for food. अपने ही फूड के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स. कि ऐसे प्लांट्स जो दूसरे इंसेक्ट्स को मार के अपने आप को जिंदा रखते हैं, तो उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोफ्स. हियर आई हैव शोन एन इमेज. एक ऐसा कार्निवोरस प्लांट है जिसमें इंसेक्ट जाएगा तो वो इंसेक्ट को खींच लेगा और अपने फूड एज अ फूड वो यूज़ करेगा. तो उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोफ्स. क्लियर किड्स? चलो, नाउ नेक्स्ट, नंबर 14, पीचर. पीचर इज अ काइंड ऑफ अ प्लांट. पीचर एक प्लांट है. अ प्लांट विथ अ डीप पीचर शेप्ड pouch that contains fluid into which insects are attracted and drawn. Nutrients are then absorbed from their bodies by the plant. Peacher is a kind of a plant. उसकी शेप कैसी होती है? एकदम पीचर शेप होती है. आपको इमेज में दिख रहा है ना कि इट्स अ पीचर शेप है. एक उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? पाउच जैसा होता है, राइट? उसमें बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं. उस फ्लूइड्स की वजह से उसमें इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और ड्रोन्ड होते हैं, और उसमें से ही वो लोग सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है अपने प्लांट के लिए उस कोई भी इंसेक्ट के प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. क्लियर? सो इट इज़ अ पीचर प्लांट. कोई भी चीज़ अगर किसी को अट्रैक्ट होती है तो बट नेचुरल है वो वहाँ पे जाने ही वाला है. तो अगर इंसेक्ट्स उसमें से अट्रैक्ट होंगे तभी इंसेक्ट जाएंगे तभी कोई भी प्लांट है वो इंसेक्ट को खा जाएगा, राइट? तभी उसमें से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तभी वो इजीली ग्रो हो पाएंगे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ पीचर प्लांट. सो किड्स, हैव यू एंजॉयड माय पीपीटी? आई थिंक yes. So kids, now your mystery has been cleared. Which part of a plant is called the factory of a plant? कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जिसे हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं? कौन सा पार्ट होगा किड्स? Yes, there you go. Leaf is the food factory of a plant, right? कोई भी प्लांट का पार्ट होता है वो नहीं, सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो फूड नहीं बनाते, बट लीफ आर द वन which prepares food for the whole plant. Clear? I hope so you like it, and I hope so you cleared what is the difference between autotrophs, heterotrophs, and every mid-rib, leaf blade, leaf apex, stomata, chlorophyll. These kind of vocabularies has been cleared in your mind. So with the help of these vocabularies, or like your meanings in your mind, आपके माइंड में जो कुछ भी था वो क्लियर हो गया है, राइट? सो इट इज इजी टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड होल चैप्टर्स विद दीज पीपीटीज. एक बार ये सारी की सारी चीजें अगर आपके माइंड में चली ही जाती है तो एक इजी वे हो जाता है पूरा का पूरा चैप्टर समझने के लिए, राइट? So in next session I am going to begin to explain chapter number 1. I am going to explain you about autotrophs, heterotrophs, then parts of a plant. How do plants make food? कि plants अपना food कैसे बनाते हैं? ये सारी की सारी चीजें मैं आपको next session में explain करूँगी. Now one thing that I want to tell you, I have shared a PDF with you. मैंने आपके साथ homework की PDF share की ना kids.
Please do it with good handwriting. It is my humble request. You are at home, I cannot scold you, but by your own self you can improve your writing and everything. As I did in my CW, please do it as same like that. Wherever you need to skip lines, skip it, use scale, give presentation. Okay? Skip line करने से आपका work clear दिखेगा, and in exam it is easy to learn all the things. Okay? So do it as what मैंने जैसे आपको बोला है वैसे ही बिल्कुल आपको करना है. Okay? चलो. So till next session kids. Bye.